Hello, hi, welcome, namaste. I'm Preeti Sachdeva from Parenting with Preeti. And as we all know that I have started the joyful journey, Your Path to Happiness podcast talk show. Today I have a very good friend of mine, Mrs. Rachna Chaudhary. Rachna, thank you so much for coming and accepting this invite. Thank you so much, ma'am. I'm so delighted to be part of your podcast. And I'm Same. looking forward for a nice, engaging conversation. Thank you. Same here, dear. Same here. So before we start with this, I would like to introduce her. Mrs. Rachna Chaudhary is a seasoned grooming and communication skill expert with extensive experience. She worked as a trainer at Air Hostess Academy, training aspiring flight attendants, and later expanded into the aviation and hospitality industries. She also collaborated with the private companies to enhance the employees' presentation and professionalism. With a strong background in the education sector, she has supported adolescents in navigating challenges, building confidence, and developing essential life skills. Her work empowers individuals across the sector with fires and confidence. So, very nice profile you have, Rachna. Very nice profile. Thank you And so much. Thank you so much, ma'am. thank you so much for coming. It's a great pleasure to Thank you have. so much for calling. I'm so excited to be here. So before we move forward, let me introduce you to the topic also. We are going to Yes. discuss about parenting essentials for the child's personality growth. Now, Hmm. when we talk about the personality development, Rachna ji, I would like to ask you what is personality development in the children and why is it important for the overall growth? Ma'am, when we talk about personality, actually it is a topmost concern nowadays for parents. And when we talk about personality, parents are just confined with the fact that personality is talking in English, which is not the fact. Most of us believe that if a child speaks English, he is well developed, his personality is well developed, which is not the fact. So, personality comprises of many factors Okay. that can be listening ability, how you focus, your focus ability, how you behave in a group, how they have their how they solve their problem, their problem solving skills, then their emotional intelligence. So there are a lot more factors other than communication. Of course communication is important, but there are so many factors which it makes the overall personality of a children. Okay. That's great thing you have underlined in this that apart from it's not only about English speaking, it's about the Yes. overall personality. Means your listening, your speaking, your skills, your interpersonal, your intrapersonal, your communication, and many more things are there. Many more things, ma'am. And if we will work from the ground level itself, from when the child is small. So I think if we are investing in his personality, we are making a more confident, more happy, and I would say more positive child with a more positive outlook for the when they get the setbacks. So yes, we should invest in personality of a child from very early age as much as we can. Right. So this is a very good thing you have shared that if you want your child to be confident and his or her self-esteem should be arising, then it's better to start with the foundation stage of the child rather than going for the middle age and the teenage. Because at that Exactly, time, ma'am. what I can understand is at that time it becomes very difficult for the parents also and for the school or the society also to change that person the way Change they that want. person, So, especially in this hard world nowadays. so So true. it is better to teach the life skill. This is a very important life skill we can teach in when we develop the overall personality of a kid. Because in our time we were not very aware of all these factors. We were not actually aware of it. So Absolutely. nowadays we have a privilege, we know things, how they work. So we should invest some time and some energy with a kid to make them a more happier person Exactly, and exactly. confident. Right, right, right. The way you have said that we have to start with the life skills means we should start teaching the life skill at the tender age only to the children.
Now, tell me one thing about this, that how can the parents influence the child's personality in this? Ma'am, our parents, family, we are the first person from they learn from actually. We are Right, the first role models. We are the first teachers, I would say. right, So we have a very impactful role. Parents have a very impactful role for a child's personality. The way you behave, the way you have an outlook for your life, the way you handle your day-to-day problems. This right, is exactly how the child is going to do. Whatever we are doing in a day-to-day life, we should actually very mindful with our actions and our words, because that's how a child is learning. This is what he or she is learning. That's how he will grow up, and he is inculcating it his or her personality very naturally and very obviously. hmm, Maybe sometimes subconsciously, sometimes consciously, they just try to copy us. So it's a very impactful role. And there are many theories which are given, ma'am, on this nurture and nature. hmm, There's Woodworth's theory, hmm. who says कि heredity में जो हमारे पास आ गया, we cannot change that. But Absolutely. then there is environment which can change in combination with the heredity. The environment can make a big impact on the child's personality. And there are several factors. There are several case studies which has been shown, and very interesting books are there. I would suggest parents should go through it and they should learn from that. दो ट्विंस भी अगर डिफरेंट एनवायरमेंट में रेस करेंगे हम लोग, तो उन लोगों की लाइफ बहुत डिफरेंट होगी. So this much how there's an impact of environment, the place where they're nurtured. So Right. you have to be, the environment which you are giving to a kid should be very very, that much self love उनके अंदर होना चाहिए. उनके अंदर ये उनको पता होना चाहिए they are secure, and they can, एक open communication होना चाहिए, कि they feel कि express कर सकता हूँ मैं. अगर सेटबैक्स होते हैं, कुछ गलतियां भी करते हैं, उसको पॉजिटिवली हम कैसे ले सकते हैं, उनसे हम क्या सीख सकते हैं. तो आपके छोटे छोटे स्टेप्स जो होते हैं, छोटे छोटे जेस्चर्स, द वे यू आर टेकिंग योर लाइफ, टेकिंग योर प्रॉब्लम्स, हाउ यू मीट विद द पीपल, आप सोशली कैसे हो, आपके खुद के वैल्यू सिस्टम क्या है, आपके एथिक्स क्या है, दिस ऑल मैटर्स अ लॉट. Absolutely, absolutely. The great thing you have shared that many of the things children get from their heredity, which can't be changed. अच्छा है तो बहुत ही अच्छी बात है. लेकिन कुछ चीजें अगर यस ऐसी आ जाती हैं कि फिर मतलब साथ के लोग ही बोलने को वो हो जाते हैं, ये तो अपनी मम्मी की टू कॉपी है, ये तो अपने पापा की टू कॉपी है. That's why people give that lines also to the children कि ये और वो Ma'am, few किस things like color of eye, color of skin, or height, body, they cannot be changed. But then the right, personality, overall personality, और बच्चे का आगे भविष्य क्या होगा, वो right. कैसे अपनी लाइफ को देखेगा, वो हम एनवायरनमेंट के साथ डेफिनेटली चेंज कर सकते हैं. Absolutely. So hereditary plus the environment, that also to the positive becomes the great personality of the child. What Yes, a great ma'am. It's formula a you have given. combination. Our personality is combination of both of it. And I think एक टाइम पे आके environment factors ओवरलीड कर जाते हैं हमारी हेरिडिटरी चीजों को भी. हार्ड वर्क अगर हम करेंगे, देन आई थिंक वो दिखेगा. Yes, yes, अगर yes. अपने बच्चे के ऊपर भी, if we little emphasis, we have to pay attention towards them. The environment plays a very important role. Absolutely. And in connectivity to this only, जैसा आपने बोला कि हाँ environment बहुत ही great crucial role play करता है, उसके साथ मेरे माइंड में ये चीज आ रही है कि emotional intelligence जो होती है, Hmm. how the emotional intelligence be a crucial part in the personality development of a child. मतलब वो एक बहुत ही सेंसिटिव चीज. Very, very, very important, topic, and very important life skill, I must say, emotional intelligence. कि बच्चे के अंदर एक दया का भाव होना, Right. और उसके अंदर एक एम्पैथी होना, और एक समझ होना कि अगर लाइफ में कुछ कठिन सिचुएशंस हैं, कुछ हार्डशिप्स हैं, तो हम लोगों को डिसीजन कैसे लेना है उस टाइम पे. एंड नाउ डेज मैम, हम सभी चाहते हैं कि हमारे बच्चे की लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं आए कभी, विच इज नॉट पॉसिबल. Right. सो हाउ वी कैन हेल्प देम इज कि अगर हम उन्हें एक इमोशनल इंटेलिजेंस का क्वेश्चन उनकी पर्सनैलिटी में दे दें,
कि जब प्रॉब्लम्स आएंगी तो आपको फेस कैसे करना है एक्चुअली में, हाउ यू हैव टू यू शुड बिहेव, और हाउ यू हैव टू हैंडल दैट प्रॉपरली, उस टाइम पे खुद को कैसे मैनेज करना है, अपने इमोशंस को कैसे मैनेज करना है, व्हाट यू कैन डू बेटर। तो छोटी छोटी मैम डेली लाइफ के जो हमारे टास्क होते हैं उनको छोटे छोटे टास्क देना, एज अप्रोप्रिएट टास्क देना। सपोज अगर छोटा है बच्चा तो उसको ये बोल देना कि मेरे पास 3 कलर्स हैं, सपोज मेरे पास सिर्फ वाइट, ब्लैक और रेड कलर है, पर मेरे को ब्राउन कलर चाहिए एंड आई एम फर्स्ट अबाउट इट कि मैं ब्राउन कलर कैसे लेके आऊं, बट इन तीनों में से किसी कॉम्बिनेशन से हम ब्राउन कलर बना सकते हैं। छोटी छोटी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स देना कि मेरे पास एक शीट ऑफ पेपर है, मेरे को 4 फ्लावर्स बनाने हैं, आई डोंट नो हाउ टू मेक दैट, कैन यू हेल्प मी विद दिस। तो इससे हम बच्चों को थोड़ा उनको खुद से प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल सिखाना कि कुछ छोटी छोटी चीजों को हमें खुद से कैसे मैनेज करना है, इंडिपेंडेंटली कैसे उनको इंडिपेंडेंट बनाना। और समटाइम्स क्या होता है कि हम बच्चे के साथ पूरे दिन रहता है, थोड़ी देर भी उसको अकेला नहीं छोड़ेंगे, नहीं बोर हो जाएगा या कैसे टाइम पास करेगी या करेगा। तो उसको थोड़ी देर अकेले भी रहने देना जिससे वो अपने इमोशंस को प्रोसेस कर सके, और अपने बोर्डम को कैसे उसको खुद से खत्म करना है, उसको क्या पसंद है, उससे बच्चा खुद को भी जानेगा। और देयर आर मेनी फैक्टर्स जो हम डे टू डे लाइफ में ही कर सकते हैं जो बच्चों को इंटेलिजेंट इमोशनली बनाएंगे। उनको एम्पैथी सिखाना कि सपोज उनको रियल लाइफ से मैम हमें अवगत कराना चाहिए, उनको रियल लाइफ दिखाना चाहिए, रियल लाइफ से कि देखो ये बेबी है, इसके पास 2 पेयर ऑफ शूज, यू हैव 3 पेयर्स ऑफ शूज, ही डोंट हैव 1 पेयर ऑफ शूज ऑल्सो। उनको डोनेट करना सिखाना, या उनको एक ग्रेटिट्यूड सिखाना डेली, कि आप भले ही 2 चीजों के लिए या 3 चीजों के लिए ग्रेटिट्यूड करो, बट देन यू शुड ग्रेटिट्यूड व्हाट यू हैव, यू शुड फील थैंकफुल फॉर दैट। So these are the factors. These are little things which we can do to make a great personality. और जो इमोशनली इंटेलिजेंट है, जो बच्चा अपनी प्रॉब्लम्स, छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को डील कर सकता है, या उसको पता है। सबसे पहले तो बच्चों को यही नहीं पता होता कि वो फील क्या कर रहे हैं, उनको वो वोकैब्स बताना कि एक्सप्रेस कैसे करना है खुद को, कि अगर आप एंग्री फील कर रहे हो, आप सैड फील कर रहे हो, आप हैप्पी फील कर रहे हो, उनको खुद से रोल मॉडल बन के उनको एग्जाम्पल देना कि सपोज आज मेरा दिन अच्छा नहीं था, टुडे आई हैव अ बैड डे एंड आई एम वेरी अपसेट अबाउट इट। फिर उनको ये भी बताना कि अगर आप अपसेट हैं तो वो नाउ व्हाट विल यू डू टू फील योरसेल्फ, टू फील बेटर। तो इससे बच्चा सीखेगा, जो हम करेंगे उससे बच्चा, दिस इज हाउ दे लर्न, नेचुरली दे विल एब्जॉर्ब ऑल दिस थिंग। एग्जैक्टली, एंड फॉर दैट आई थिंक इसके लिए जरूरी है कि पेरेंट्स भी खुद का अपना स्ट्रेस मैनेजमेंट जैसे रहता है उनको वो बैलेंस करके चलें, तब तो जाके दे कैन गिव दैट इमोशनल इंटेलिजेंस एंड अटैचमेंट टू द चिल्ड्रन ऑल्सो। कि एम्पैथी, जैसे आपने यस। बोला कि एम्पैथी वी शुड टीच द चिल्ड्रन, वो एम्पैथी तब सिखा पाएंगे जब वो खुद को अपना मतलब अपना स्ट्रेस लेवल अपना उस तरीके से रखेंगे कि हाँ उस चीज को साइड, राइट। वी आर व्हेन वी आर विद देयर किड्स, आवर किड्स, देन वी आर देयर ओनली, मतलब उसके बाद फिर आगे पीछे यस। कोई इधर उधर की बात नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई काम नहीं, कोई वो नहीं। बिकॉज आई हैव सीन, एग्जैक्टली। आई हैव ऑल्सो बीन अ पेरेंटिंग कोच ना, तो जैसे कोई आते हैं लोग, चैलेंजेस आते हैं पेरेंट्स के, तो इफ पेरेंट्स आर बोथ वर्किंग और सिंगल, हम्म। और वन पेरेंट इज वर्किंग एंड वन इज द हाउस वाइफ, हर मोस्टली जगह पे यही होता है कि एंजाइटी उनकी और उनका खुद का टेंशन वो बच्चे में दिखना शुरू हो जाता है। राइट। राइट। और एंड मैम सबसे बड़ी बात ये कि अभी कुछ पेरेंट्स ऐसे भी हैं जो इस चीज को, दे आर नॉट अवेयर कि ये लाइफ स्किल्स उनको सिखानी पड़ेगी बच्चों को। दे थिंक कि अगर सिर्फ कराटे भेज दिया, सिर्फ स्केट क्लास भेज दिया, दिस इज इनफ फॉर देम। दिस इज नॉट इनफ। उनको मेंटल एक्सरसाइज करवाना भी जरूरी है फिजिकल के साथ। तो दीज आर द मेंटल एक्सरसाइजेज जो हमें करवानी चाहिए। अगर आपकी फैमिली में वो इन्वायरमेंट नहीं है तो मे बी विद पीपल लाइक यू आर हेल्पिंग, तो कुछ सेशंस करवाना या हफ्ते में 3 क्लासेस इस तरह से काउंसलिंग करवाना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक देम हैप्पी पर्सनालिटी, रेजिलिएंट पर्सनालिटी। ट्रू ट्रू ट्रू, वेरी ट्रू। अब इसके साथ मुझे ये बताओ कि व्हाट स्टेप्स कैन द पेरेंट्स टेक टू हेल्प देयर चिल्ड्रन। अभी तो ऑलरेडी आपने बहुत कुछ बताया, लेकिन अपने बच्चे के इमोशंस को कैसे समझ सकते हैं? मैम द अटमोस्ट जो सबसे पहला पॉइंट तो यही है कि जो आपने बताया कि आप घर पे जो स्ट्रेस एंजाइटी सब लेकर आते हैं,
it's okay, which is quite, unavoidable. Right. But then you should take some measures. अगर आप उन्हें ये चीजें दिखा रहे हैं, ये इमोशंस दिखा रहे हैं, तो फिर उनको ये भी सिखाइए कि हाउ टू कोप अप विद दिस. और दिस इज Absolutely. नॉट द एंड ऑफ द लाइफ. दीज आर डे टू डे प्रॉब्लम्स जो हमें फेस करनी ही है. तो जो स्किल वो है जो आप इससे कोप अप कैसे करोगे. नाउ व्हाट विल यू डू टू गेट रिड ऑफ इट. मे बी आप कोई गेम खेलोगे, कोई स्पोर्ट कर लोगे, या आपको बुक पढ़ना पसंद है, या आपको कुकिंग पसंद है. तो Hmm. अगर आप उनको ये वाला साइड दिखा रहे हैं तो वो वाला साइड भी दिखाएं. Right. दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि बच्चे को हमें खुद को एक्सप्रेस करने के लिए उनको कभी अशेम नहीं फील करना है. इफ दे आर फीलिंग सर्टेन थिंग, तो उनको नॉर्मलाइज करवाओ कि इफ यू आर फीलिंग सैड, यू वांट टू क्राई, इट्स ओके. इफ यू आर फीलिंग गिल्टी, इट्स ओके. इफ यू हैव डन समथिंग रॉन्ग, एंड यू नो यू एक्सप्रेस योर सेल्फ. ओपन कम्युनिकेशन रखना फैमिली में. Right. उनकी बातों को भले ही आप 10 मिनट दीजिए, बट देन आप सिर्फ सुनने के लिए दीजिए. लिसनिंग स्किल्स अगर आप अपनी बढ़ाएंगे, उनको बात को सुनो, उनको वैल्यू फील कराओ घर के अंदर, उनको कनेक्टेड फील कराओ कि कि यू आर कनेक्टेड विद हिम और हर. तो दीज आर द इम्पोर्टेंट थिंग्स जो हम छोटी छोटी चीजें कर सकते हैं. दूसरा कि एक ओपन विंडो तो रखनी है कम्युनिकेशन के लिए. उनको हमें टर्म्स भी बताने चाहिए कि if you are feeling in certain way, this is called you are feeling sad. If you are feeling that way, it means you are exhausted or you are frustrated on something. तो जब हमारी कम्युनिकेशन, इट कुड बी हिंदी इंग्लिश, लेकिन हमारा जो शब्द है, जो लाइंस है, वो पूरी होनी चाहिए. वो अपने आप को व्यक्त कर सकता है बच्चा पूरी तरह से. किस तरह से वो तभी होगा जब हम लोग कभी कभी क्या बोलते हैं, बेटा ये उठा के तुम्हें पसंद है, खा लो. पूरी स्टेटमेंट बोलिए. क्या आपको लाल रंग पसंद है, अ कंप्लीट स्टेटमेंट. Yes. Yes. उसके बाद कोई छोटी छोटी कभी एक्टिविटीज कर ली. सपोज एक बॉक्स में आपने उसके बहुत सारी चीजें रख दी जो उसको पसंद है, एंड देन हमने उनसे बोला आप इसमें से कोई चीज उठाओ और उसके बारे में हमें 5 चीजें आपको बतानी है. इट कुड बी color, it could be shape, it could be anything which they like about it or they dislike about that. इस तरह की कोई एक्टिविटी करवा ली. एंड देन ऑफ कोर्स हमें कुछ चीजें उनको सेफ सिक्योर फील कराना और अनकंडीशनल लव देना. एंड देयर शुड नो जजिंग. और अगर कभी वो मिस्टेक कर भी देता है तो हमें उनको रेनफोर्स करना है उनकी हॉबीज के लिए. हमें इंटरेस्ट दिखाना है उनके टुवर्ड्स कि यू लाइक दिस, यू कैन ट्राई इट आउट. इट डजेंट मैटर आप उसमें फेल हो गए, पास हो गए, बट देन यू कैन ट्राई इट आउट. एक जिससे लाइफ में आगे चल के क्या होगा कि अगर उन्हें सेटबैक्स भी आते हैं या उन्हें कोई नई चीज ट्राई करने से डर नहीं लगेगा. दे कैन एटलीस्ट गो थ्रू दैट. Absolutely, absolutely. Very useful information you have shared and so many activities. एक ही क्वेश्चन में आपने इतने अच्छे से समझाई है ना. और इससे ना एक चीज, मेरे एक मेंटोर है, उनकी बात याद आती है. बच्चा जो देख रहा है वो ही सीख रहा है. मीन्स एग्जैक्टली. यू आर प्रोजेक्टिंग योर सेल्फ इन एंग्जाइटी, टेंशन, जैसे आपने बोला. उनको वो क्या, आप तो पता नहीं, लेकिन जो आपके फेस पे वो देख रहे हैं वही सेम चीज वो रिफ्लेक्ट भी करेंगे. But if you are showing राइट them how मैम. to do the gratitude, how to help others, how to do the donation, how to share the things, तो वही चीज वो देख के वो भी सीखेंगे. And how यस to मैम. express. बल्कि कुछ पेरेंट्स की क्वेरीज ये आती है कि अगर हम उन्हें बहुत ज्यादा एम्पैथी सिखाएंगे या रियल लाइफ से दिखाएंगे तो वो बहुत इमोशनल हो जाएगा बच्चा. बट देन मैं उनसे यही बोलती हूँ कि अगर वो आप इतना प्रैक्टिकल भी उसको बना दोगे तो कल को उसके सिबलिंग्स के लिए या मे बी आपके लिए भी उसके दिल पे एम्पैथी रहेगी ही नहीं. नहीं सो रहे. यू हैव टू शो देम द रियल वर्ल्ड, बट देन ऑन अदर साइड यू हैव टू शो कि आप एम्पैथी कैसे कर सकते हो, हाउ यू कैन हेल्प Right. अदर्स. The main thing you have shared for making them teach how empathy is to be listening वाला काम, कि आप 10 मिनट बस शांति लिसनिंग. से बैठ के अपने बच्चे की सुनो, चाहे उसने गलती कर दी है, ये नहीं कि अच्छा गलत किया लगाऊं ही, वो वाला एटीट्यूड नहीं होना चाहिए. फिर आप खाली शांति से यस बैठ मैम. के दे शुड फील सुनो. कनेक्टेड, Right. वैल्यूड. तो फिर वो वैल्यूज तभी आप अपने बच्चों के अंदर इनकॉर्पोरेट कर पाओगे जो आप चाहते हो, कि वंस दे आर देयर एट दैट लेवल वेयर यू आर एट प्रेजेंट. क्योंकि कुछ पेरेंट्स का ऐसा हो जाता है, फिर एग्जैक्टली. उनको रिग्रेट होता है, हमारे टाइम पे हमारे साथ ऐसा हुआ था, हमने ऐसा नहीं कर पाए थे, तो हम अपने बच्चे के साथ ये नहीं होने देंगे. उस चक्कर में वो ऐसा कुछ कर जाएंगे जो उनको ही नहीं पता रहेगा. बट वो मैम इम्पोर्टेंट नहीं. अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रखना बच्चे से, वो बच्चे को इतना फियर और इतना स्ट्रेस देता है जो हम रियलाइज नहीं करते हैं.
हमने उनको अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस दे दी, अभी आपको 90% लेके आना है, हमें पता है हमारे बच्चे को, वी नो कि हाउ मच ही इज Potentially गुड he एट has. एकेडमिक्स और हाउ वेल ही कैन डू इन स्पोर्ट्स। तो Right. उसको इस तरह की एक्सपेक्टेशंस देना भी, हम उसको स्ट्रेस और एंजाइटी दे रहे हैं। तो yes, parents play a very important role in overall personality of a kid. Right. Right. In my career, ma'am, I have seen very beautiful girls and handsome boys, Mhm. but they cannot sit in group. They don't know how to talk in group. They don't know how to work, how to cooperate and work together. So, Okay. and when they don't know how to express themselves. तो ओनली थिंग इज कि आप जब तक आप कनेक्ट नहीं करोगे बच्चे के साथ, आप उसको सोशली कैसे एक्टिव बना रहे हो, ग्रुप डिस्कशंस, आप शेयरिंग करना सिखा रहे हो खुद के इमोशंस को, उसको उसको वैल्यूड फील करा, जैसे आपने बोला कि सेल्फ एस्टीम उसकी बढ़ रही है। तो ये छोटे छोटे जो हमारी एक्टिविटीज ही होती हैं, जिनको हम शायद हमें लगता है कि अरे नहीं, अभी बच्चा सब ऑब्जर्व करता है, इज अ वेरी कीन ऑब्जर्वर। Yes. एंड वो जो पर्सनैलिटी पूरी निकल के आती है, दैट इज हाउ इट इज, दिस इज वी ओनली दैट व्हाट वी नर्चर्ड देम। Yes, so true. And my next question was this only, that how does the nurturing family environment contribute to the personality development? अब पहले इस चीज का आंसर देने से पहले आप मुझे ये बताओ कि आपका बेटा है? यस मैम, आई हैव अ 4 year old son. 4 year old son. इसका आंसर ना मुझे उस कनेक्टिविटी से देना है, हाउ यू नर्चर योर सन, मीन्स किस टाइप का एनवायरनमेंट, किस टाइप का आप वो देते हो कि वो एक उससे आ जाए, बिकॉज आई हैव मेट हिम आल्सो, दैट्स व्हाई आई आस्क्ड यू डायरेक्टली दिस थिंग. Sure, ma'am. Ma'am, actually, I would like to start this with a very good theory which is given by Jean Piaget. And जब मैंने B.Ed किया था उस टाइम पे, I gone through all this. And it is such important and very interesting theories, और इतनी realistic, हम उससे connect कर पाते हैं. And I will advise everyone to go through that Jean Piaget की theory. It says cognitive development of a kid. Cognitive is related to mental development of a kid. और उसमें मैम फ्रॉम चाइल्डहुड, अर्ली चाइल्डहुड से लेके इन्फेंसी से लेके, इनफैक्ट 0 से लेके एडल्टहुड तक की जो बच्चे की जर्नी होती है, वो कैसे चीजों को अपने अंदर एसिमिलेट कर रहा है और उसको कैसे अकोमोडेट कर रहा है खुद की लाइफ में, वो बहुत ब्यूटिफुली और बहुत ही सिंपल वे में उन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है. सो देयर आर स्टेजेस 0 to 2, then 2 to 7, 7 to 11, and then so on. तो मैं अब आपके क्वेश्चन पे आती हूँ कि आपने बोला कि आप कैसे रिलेट करते हो. सो उसमें एक स्टेज दिया था, द फर्स्ट स्टेज इन्फेंसी से बच्चे का होता है 2 साल तक का, विच इज सेंसरी मोटर. ओके, कि वो छू के चीजों को ऑब्जर्व करके चीजों को पता करता है, रिलेट करता है. एंड देन समहाउ कहीं ना कहीं उसके दिमाग में भी एक स्कीमास बन रहे होते हैं, जो मम्मा कैसे कर रही है या घर में जो बाकी लोग हैं वो कैसे चीजों को कर रहे हैं, इसको किस तरह से होल्ड किया जाता है, एंड ऑन व्हाट थिंग्स मम्मा शाउट्स. एंड अगर किसी चीज के 4 पैर हैं, अगर मम्मा ने कह दिया इट वाज दैट्स अ काउ, तो वो हर चीज को फिर काउ बोलेगा जिसके 4 पैर देखेगा. और द मोमेंट हम उसको समझाएंगे, धीरे धीरे एक एज पे आएगा जब वो देखेगा कि नहीं यार, 4 पैर वाला तो हॉर्स भी मम्मा ने बोला है, कैट भी बोला है. तो वो जो नॉलेज एक स्टेज पे ली थी कि 4 legs मीन्स काउ, अब वो उसको चेंज करके कर रहा है अपने अंदर कि नो, इट मीन्स काउ, हॉर्स, कैट एंड ऑल दिस. तो थिंग इज कि मैम हर स्टेज पे बच्चे का एक अलग डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट हो रहा होता है. राइट. आपने बोला नर्चर करना, अगेन इट कम्स विद द एनवायरमेंट. वी आर द फर्स्ट पर्सन, फैमिली इज द फर्स्ट स्कूल टू अ किड. हम उसको कैसे नर्चर कर रहे हैं, हम उसको कैसे एक्सेप्ट कर रहे हैं उसकी गलतियों को, या अगर वो अपने इमोशंस को बहुत अच्छे से हैंडल कर रहा है और हमने उसको कैसे रिवॉर्ड दिया, छोटी छोटी चीजों के लिए हम उसको एनकरेज कर रहे हैं, या छोटी छोटी चीजों के लिए हम उसको डिसिप्लिन में लाना सिखा रहे हैं कि सपोज आप अपनी बुक्स को कैसे अपने स्टडी टेबल पे आपको रखना है. राइट. एज अप्रोप्रिएट हमने उसको छोटे छोटे टास्क दे रखे हैं. तो दिस इज ऑल द things which factors which nurtures a personality, which nurtures a kid.
तो अगेन दिस इज द होमवर्क ऑफ अ फैमिली. वी कैन नॉट टेल इट टू स्कूल के ऊपर हम पूरी तरह से वी कैन नॉट डिपेंड. Absolutely. घर के अंदर हमारी वैल्यूज क्या है, हम क्या मॉरल एथिक्स से हाउ व्हाट आर आवर वैल्यूज. जब हमारे घर पे कोई आता है हम कैसे रिस्पेक्ट करते हैं, हाउ डू हम सोशली कैसे लोगों से बात करते हैं, हम कितने रेजिलियंट है जब घर में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो हाउ डू वी टैकल इट. Right. दिस इज ऑल कॉल्ड नर्चरिंग. आप डे टू डे लाइफ में क्या कर रहे हो, क्या एनवायरनमेंट आप बच्चे को दे रहे हो, उसको कितना सिक्योर, कितना एक्सेप्टेबल बना रहे हो, कितना आप उसको लविंग कनेक्टेड फील करा रहे हो. दिस इज ऑल योर वर्क टू बी डन. एंड देन उसका जो आउटकम है, दैट इज द ओवरऑल पर्सनैलिटी ऑफ अ किड. कि वो लाइफ में चीजों को अगेन उन चीजों को कैसे फेस करेगा. जब उसकी लाइफ में वो चीजें आएंगी, देन हाउ विल ही रेजोनेट कि Right. मेरे पेरेंट्स ने, मेरी फैमिली ने मुझे कैसे नर्चर किया है, क्या मेरी वैल्यूज दी हैं, वो फिर देन इट कम्स आउट ऑफ द पर्सनालिटी. तो अगेन हमें उनको एक्सेप्टेंस देनी है, ओपन विंडो रखना है कम्युनिकेशन के लिए. दे कैन कम एंड टॉक एनीथिंग टू अस, दे कैन एक्सप्रेस देमसेल्फ विदाउट जजमेंट्स. कोई चीज गलत हो रही है, नहीं हो पा रही है, उनको पॉजिटिव रेनफोर्समेंट देना. या किसी चीज के लिए वो कह रहे हैं नहीं मम्मा दिस इज वेरी हार्ड, आई माइट नॉट एबल टू डू दिस, उनको Hmm. एनकरेज करना कि लिटिल स्टेप्स आप लेना सिखाना उनको. Right. और of course again you have to be very mindful with your actions, with your words, with your thought process. This is all going to be in a child's personality. So true. We cannot escape with this fact. वेरी गुड. क्योंकि ये तो चीजें ऐसी हैं जो लाइफ लॉन्ग हमारे साथ रहनी ही रहनी है. एंड चाहे This is बच्चा छोटा है, चाहे बड़ा है, चाहे किस भी एज में आ जाए, अगर आपकी कनेक्टिविटी उनके साथ नहीं है तो आप उसको प्रॉपर hmm, तरीके से नर्चर भी नहीं कर पाओगे, एक कॉन्फिडेंट चाइल्ड भी नहीं बना पाओगे. नहीं बना पाएंगे. और मैम ऐसे ही बच्चे फिर आगे जाके इमोशनली बहुत वीक हो जाते हैं. और जहां पे उनको हेड डाउन नहीं करना चाहिए, जहां पे उनको हेड्स अप करके कहना चाहिए नहीं मेरा एक पॉइंट सही है, राइट. वहां पे भी वो कहीं ना कहीं उन चीजों को राइट हो उनकी जाए. डिसीजन मेकिंग पावर खत्म हो जाती है. इमोशनली वीक हो जाते हैं वो लोग. तो एक कॉन्फिडेंट चाइल्ड नहीं बन पाता है, वो आगे चल के उसको प्रॉब्लम्स आती हैं. सो अगर आप वो घर में उसकी बात किसी ने नहीं सुनी है, उसको वैल्यू नहीं फील कराया, कल को कोई और उसको बहुत वैल्यू फील कराएगा, भले वो इंसान उसके लिए सही नहीं है, बट वो उसको बहुत अच्छा लगेगा. उसकी एक सही डिसीजन मेकिंग पावर उनकी खत्म हो जाती है कहीं ना कहीं. वो डिपेंडेंट हो जाते हैं, जहां से उनको थोड़ा बहुत ब्रेड क्रम्बिंग्स मिलती है, वो उनकी तरफ उनकी टुवर्ड्स जाने लगता है. राइट. अट्रैक्ट इनिशियली रहता है. Yes. दिस इज द वेरी सेंसिटिव थिंग द पेरेंट्स शुड आल्सो नो कि अगर आप स्टार्टिंग से ही अपने बच्चे के साथ इतना कनेक्शन बना के रख रहे हैं कि कल को कुछ भी हम्म. हो जाए वो सबसे पहले आपको देखें, आपके पास आके सब कुछ शेयर करें, रादर देन फाइंडिंग द सोल्यूशन आउटसाइड योर हाउस. सो दिस इज द वेरी राइट मैम. सेंसिटिव एंड वेरी राइट थिंग यू हैव शेयर्ड अबाउट दिस. कोई एक या दो इंसिडेंट बिकॉज इतनी सारी चीजें आजकल हो गई है ना बच्चों को, जो बहुत देखने में बहुत अच्छी लगती है, वेरी प्लीजिंग थिंग्स जो उनको अट्रैक्ट करती हैं, बट दे आर नॉट गुड फॉर देम. बट देन अगेन अगर बच्चा जो इमोशनली वीक होता है वो उसके टुवर्ड्स बहुत जल्दी जाने लगता है. तो दैट्स व्हाई टू मेक अ स्ट्रॉन्ग एंड रेजिलिएंट पर्सनालिटी, हमको उनको इनकलकेट करनी है ये छोटी छोटी चीजें. Right, right, right. Very truly said and very nicely you are nurturing your son. जिस तरीके से आपने ये बातें बताई हैं ना, तो very nicely you are nurturing your son too for this. थैंक यू सो मच मैम, यू आर माय आइडल. Thank you so much. Thank you so much for this respect. And as we have come to the end of the talk show, I would request you कि कोई 3 गुरु मंत्र अपनी तरफ से आप ऑडियंस को क्या देना चाहोगे? Any 3 takeaways? Sure, ma'am. So number one is ki loving or respectful towards your kid, or loving, without any getting back wali feelings के साथ. Love them. Right, right. Number two is उनको छोटे छोटे टास्क देना, उनको encourage करना, जिससे वो सेल्फ डिसिप्लिन बने और खुद से भी एक इंडिपेंडेंस उनके अंदर आए. उनको बहुत ज्यादा खुद के ऊपर हमें डिपेंडेंट नहीं बनाना है. उनको छोटी छोटी उनकी एज अप्रोप्रिएट हमें काम करवाना है, उनको डिसिप्लिन रखना, उनको इनकरेज करना इन चीजों के लिए. एंड नंबर थ्री इज कीप द कम्युनिकेशन ओपन विद देम. लेट देम एक्सप्रेस without judging them, even if they made a mistake.
हमें उसको कॉन्सिक्वेंसेस बताने हैं, हमें ये जरूर बताना है कि सी नाउ यू मेड दिस मिस्टेक, दीज आर द कॉन्सिक्वेंसेस, सो एटलीस्ट नाउ शी विल नॉट रिपीट दैट अगेन, नो। एंड उनको ये बताना कि मिस्टेक्स आर जस्ट द स्टेपिंग स्टोन्स ऑफ सक्सेस, दिस इज हाउ वी लर्न, दिस इज अ प्रोसेस ऑफ लर्निंग। Right, तो right. यस, Very nicely. loving them, ma'am, unconditionally, listening them, and keeping the communication window open. यस, इससे पता मेरे को एक चीज वो आई है जो आपको मैं इस 3 takeaways का क्रक्स अगर मैं बताऊं, L, C and D. L means love, listening. C means communication. And D means getting into the discipline to the child. Exactly, ma'am. Right? So That's what these I'm three. trying to tell. लेकिन LCD का मतलब मेरा पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है, कुछ और मत ले जाइएगा। हमारा कहने का मतलब यही है कि आप पहले लव और लिसनिंग स्किल्स अपनी उतनी स्ट्रांग रखिए बच्चों के साथ कि वो आपके साथ कनेक्टेड फील करें। देन कम्स द कम्युनिकेशन पार्ट, कि वो आपके साथ ओपन कम्युनिकेशन में रहें। एंड देन कम्स द डिसिप्लिन। वंस दीज टू थिंग्स आर डन, आई एम श्योर कि वो डिसिप्लिन में आने के लिए दे देमसेल्फ विल बी रेडी, कि वो आपकी हर Right, बात मानेंगे, आपकी हर बात सुनेंगे, और जो भी डिसिप्लिन में आप उनको करवाना चाहते हो वो आप करवा पाओगे विद प्रॉपर एम्पैथी। right. तो इंस्टेड ऑफ कि गलत लोगों के पास जाके, बाहर जाके वो चीजें शेयर करें, सबसे पहले वो पेरेंट्स के पास इतना कंफर्टेबल हो कि आई कैन शेयर एनीथिंग विद माय मम्मा एंड माय पापा एंड व्हाटएवर, नो, यस, फैमिली में शेयर कर सकता है वो बच्चा। absolutely, absolutely. So thank you so much, Rachna ji, for coming and giving such a great insightful talk on this, कि बच्चों का पर्सनालिटी हम कैसे बना सकते हैं। and i'm Pleasure is sure all that mine, ma'am. and I'm sure It that was this a great interaction. I learned a lot from you, and you're really, inspiring for the young parents and people like me. I oh, learned a lot from you. oh my god, highly obliged to listen this, highly obliged. So, and the wonderful tips or the tricks and activities you have shared, I am sure that once the children, parents will be watching this video, they will definitely do with their children also. And I'll be sharing this link on the YouTube and everywhere. I'll tag her also. But if you have any query regarding anything, कि कैसे पर्सनालिटी में और क्या क्या चेंजेस लाने चाहिए, कहाँ स्ट्रगल कर रहे हो, you can directly contact her anytime on the social media. So thank you so much, Rachna, once again for coming. Thank you, ma'am. Pleasure is all mine. It was lovely talking to you. Same here. Thank you so much, audience, for watching this. Keep healthy, be safe.